assessing and analyzing the operation of logic circuits. Shannon was the first to apply Boole's work to the analysis of relay and switching circuits in 1938 during his MS thesis at MIT University. In 1904, Einstein gave a set of postulates that forms the basis of formal definition of Boolean algebra. And what is the set of notations used in Boolean algebra is that mathematical system can be defined as, first of all, elements. A set of elements is any collection of objects having a common property. नॉर्मली अभी तक आप लोगों ने जो है वो सेट्स देखे हुए हैं मैथ में कि जिनका आप यूनियन लेते थे, सब्ट्रैक्शन करते थे, एडिशन करते थे, ठीक है ना, वही सेट्स हैं आपके पास और वही एलिमेंट्स आपके पास. A set of operators, a binary operator defines on a set S of elements in a rule that assigns to each pair of elements for S a unique element from S. A number of unproved norms and postulates that form the basic assumption from which it is possible to deduce the rules, theorems, and properties of the system. The following notations are being used in this class. X and आगे जो है क्या होगा, X belong to S. S आपके पास जो है वो एक सेट है और and X and Y may be second line are certain objects. Then we write X belong to S, indicates that X is an element of the set of S. And similarly, Y not belong to S indicates that Y is not an element of the set of S. For example, if we have a set A, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 are the elements of the set A, indicate that set A exists with a finite number of elements 1, 2, 3, 4. Then we say that 2 belong to A, and similarly as we see Y not belong to, say in this set we say 5 not belong to A, because 5 is not an element of the set A. The postulates of mathematical system forms the basic assumption from which it is possible to deduce the rules, theorems, and properties of the system. Some common postulates to formulate various algebraic structures are: number one, clear आपके पास a set S is clear with respect to a binary operator if for every pair of elements of S, the binary operator specifies a rule for obtaining a unique element of S. For example, n is equal to 1, 2, 3, 4. N is a set of all natural numbers. Then in this set we see that if we want to obtain a unique element, for example 2, then we see that 1 plus 1 is equal to 2. Similarly, if we want to get the element, third element, then we add 1 to its previous element and we get the next element. Similarly, this indicates that the binary operators specify a rule for obtaining a unique element of this set. Similarly, associative law, a binary operator multiplication on a set S is set to associative law. Y multiply Y's and both multiply by Z, then we write it as X multiplies both with Y and Z.
Cumulative law, a binary operator multiply on set S is said to be cumulative when x multiply y is equal to y multiplied by x, means the order has no impact on multiplication. Identity element, a set is said to have an identity element with respect to a binary operator multiplication on S if there exists an element E that is a member of the set with the property E multiplied by X is equal to X multiplied by E is equal to X for every element of the set. Additive identity is 0 and multiplication identity is 1. Note steric multiplication and dot are binary operators. For example, the element 0 is an identity element with respect to the binary operator plus on the set of integers I. If we have a set of all integers I, that is all natural numbers 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, and so on, then 0 is an identity element with respect to binary operator plus. It means x plus 0 is equal to 0 plus x is equal to x for all x belong to integer set. Similarly, as we see in above example, n is equal to 1, 2, 3, 4, where n is a natural number set, then the set of natural number n has no identity element since 0 is excluded from the set. So, inverse. A set S having the identity element E with respect to a binary operator multiplier is said to have an inverse if for every element of the set the following property holds: x multiplied by y is equal to E. Similarly, for example, if we take the set integer sets I again, then the operator plus with E is equal to 0, the inverse of an element A is minus A, since A plus into minus A is equal to 0 also. The additive inverse of element A is minus A and it defines subtraction. Since A plus into minus A is equal to 0, multiplicative inverse of A is 1 over A and defines division, since A dot 1 over A is equal to 1. Distributive law. Multiplication is said to be distributive over when x multiplied by y dot z is equal to x multiplied by y dot x multiplied by z. Here multiply and dot are the binary operators. Two-value theorem. It defined as the set of two elements. For example, v is equal to 0, 1. The operator of and or are satisfied by Hunting postulates that are 1904 E.V. Huntington's formulate of number of postulates that gives us formal definition of Boolean algebra. Boolean algebra is an algebraic structure defined by a set of elements B together with two binary operators plus and multiplication, provides that the following postulates are classified. Similarly, first one is Floyer with respect to the binary operator or C is equal to x plus y with respect to the binary operator and mean multiplication C is equal to x multiplied by y. Identity with respect to R plus is 0, x plus 0 or 0 plus x is equal to always x for x is equal to 1 or x is equal to 0.
With respect to and mean multiplication is 1. X multiplied by 1 or 1 multiplied by x is equal to x for all x. Cumulative law with respect to r, x plus y is equal to y plus x. With respect to multiplication, x multiplied by y or y multiplied by x. Always results are same. Distributive law with respect to the binary operator r, x multiplied by x plus y multiplied by z is equal to x plus y multiplied by x plus z is a distributive law. Similarly, distributive law with respect to multiplication, x dot y plus z is equal to x dot y plus x dot z. Complement for every element x that belongs to B, there also exists an element x bar complement read as complement of x such that x plus x bar is equal to 1 for x is equal to 1 or x is equal to 0. Similarly, x multiplied by x bar is equal to 0 for all x is equal to 1 or x is equal to 0. Complement means the inverse of the x. If x is 1, then x multiply x complement indicates 1. Membership. There exists at least two elements x and y of the set such that x not belong to y, 0 not belong to 1. Comparing Boolean algebra with arithmetic and ordinary algebra, we note that the following difference. Number one, the associative law is not listed, but it can be derived from the existing postulates for both plus and multiplication operations. The distributive law for plus and dot, for example, x plus into y dot z is equal to x plus y dot into x plus z is valid for Boolean algebra but not for ordinary algebra. Boolean algebra does not have inverse additive or multiplication, therefore there are no operations related to the subtraction or division. Postulate 5 defines an operator called complement that is not available in ordinary algebra. Boolean algebra deals with only two elements that are 0 and 1. For example, a two-value Boolean algebra is defined on a set of two elements b is equal to 0, 1 with rules for the two binary operators plus and multiplication. As shown, we have two elements x and y, and we want x multiplied by y, then x has 0 value or either 1 value. Similarly, y have a 0 value or 1 value at a time. So if both x and y are 0 have 0 0 value, then x multiplied by y gives us answer 0. If x is equal to 0 and y is equal to 1, then it gives us 0 multiplied by 1 is equal to 0 answer. Similarly, if x is equal to 1 and y is equal to 0, we again get answer 0. But if both x and y are 1, then x dot y is equal to 1. It is called AND operation. Similarly, if we want to add x and y, then it is called an OR operator. In OR operator, we see that if x and y both are 0, then 0 plus 0 answer is equal to 0. Similarly, if x is equal to 1 and y is equal to 0, or y is equal to 1 and x is equal to 0, then 0 plus 1 or 1 plus 0 gives us answer 1. Similarly, if x and y both are 1, then 1 plus 1 always gives us answer 1.
not operator, if we have x 0, then x complement or not operator gives us x complement is equal to 1. Similarly, if x is equal to 1, then not operator gives us 0 also. As we see the distributive law and cumulative laws, these laws are easily proved by using the truth table like this. For example, if we have three values in distributive law, that is x dot y plus z is equal आपकी to आवाज कट रही है सर। ओके जी, अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमने देखा था एक्स डॉट इंटू वाई प्लस जी हो, ये इक्वल होता है एक्स डॉट वाई के प्लस एक्स डॉट जी। इसको अगर आपने प्रूव करना है तो हम सबसे पहले तीन जो हमारे पास एलिमेंट है एक्स वाई और जी, इनकी वैल्यूज लेंगे। एक्स आपके पास एक टाइम पे 0 हो सकता है या आपके पास 1 हो सकता है। इसी तरह से y आपके पास 0 हो सकता है या आपके पास 1 हो सकता है। z भी आपके पास 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके जो कम्बिनेशन है वो लिखेंगे। तो पहले कम्बिनेशन में हमने तमाम को जो है वो 0 0 रखा हुआ है। दूसरे कम्बिनेशन में हमारे पास कोई एक इनमें 1 होगा तो हमने 0 0 1 रखा हुआ है। तीसरे में हमने 0 1 0 रखा हुआ है। चौथे में हमने 0 1 1 रखा हुआ है। फिर हमने 1 0 0 रखा हुआ है। फिर हमने 1 0 1 रखा हुआ है। फिर हमने 1 1 0 रखा हुआ है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि किसी भी एक सेट को अगर आप उठाएंगे तो उसमें आप देखें फॉर एग्जाम्पल 0 1 1 है तो एक्स या 0 हो सकता है, आपके पास 1 हो सकता है, यहाँ पे एक्स 0 है, वाई 1 है और जी 1। ठीक है, इसी तरह से एक्स अगर 0 है तो वाई आपका जो है वो 0 भी हो सकता है और जी जो है 0 भी हो सकता है। तो इस तरह से मुमकिन जितने भी कम्बिनेशन हैं वो हमने, ये ऐसे ही आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 और 7 की बेसिकली बाइनरी लिखी। तो कम्युलेटिव लॉ में, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारे पास क्या है, एक्स डॉट वाई प्लस जी है। तो सबसे पहले हम जो इनटू है इसको कैलकुलेट, वाई प्लस जी, वाई प्लस जी को यहाँ से लेंगे आप टेबल से, 0 प्लस 0 आंसर आपके पास 0 आएगा, 0 प्लस 1 आंसर 1 आएगा आपके पास, 1 प्लस 0 आंसर 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 आंसर 1 आ जाएगा, 0 प्लस 0 आंसर 0 आ जाएगा, 0 प्लस 1 आंसर आपके पास 1 आ जाएगा, 1 प्लस 0 आंसर 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 आंसर आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। अब ये जो आंसर आया है आपके पास y प्लस जी को, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है x के साथ। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा x डॉट इंटू वाई प्लस जी। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें x की वैल्यूज के साथ, 0 आ गया आपके पास, इधर ही दे दे, 1 तो इधर ही आप दे दे, मेरा लेक्चर हो रहा है। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे आप तो आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। इसी तरह से 1 मल्टीप्लाई 0 करेंगे, ये भी आंसर 0 आएगा। फिर आप 1 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा आपके पास। फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। फिर 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे आंसर 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे आंसर 1 आ जाएगा, और लास्ट जो है आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। ये तो होगी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की एक साइड। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की दूसरी साइड देखते हैं, वो है आपके पास एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जी। तो सबसे पहले आप एक्स डॉट वाई और एक्स डॉट जी को कैलकुलेट करेंगे, फिर इन दोनों की वैल्यूज को ऐड करेंगे तो आपके पास एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जी बन जाएगा। तो एक्स डॉट वाई करने के लिए आप एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहली जो चार वैल्यूज हैं वो एक्स में 0 हैं और वाई में जो है वो चेंज है। तो जब इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली चार वैल्यूज जो है वो 0 ही आ जाएंगे आपके पास। मीन 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास 0 आ जाएगा।
फिर आपके पास x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आ जाएगा। फिर आपके पास x की वैल्यू 1 है, y की 0 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। लास्ट टू पे दोनों की वैल्यूज 1 1 है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 1 1 आ जाएगा। सिमिलरली जब आप x डॉट z करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0 0 0 0 0 1 0 1 आएगा। अब इन x डॉट y और x डॉट z के आंसर को आपस में आपने ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे 0 को 0 में ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। इसी तरह से आप तमाम जीरोज हैं शुरू में आपके पास तो 0 0 0 0 आ जाएगा आंसर। फिर आपके पास 0 प्लस 1 आ रहा है तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। फिर 1 प्लस 0 आ रहा है तो आंसर 1 आ जाएगा। फिर आपके पास 1 प्लस 1 आ रहा है तो आंसर 1 आ जाएगा। अब आपके पास x डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जी का आंसर आ गया। इसको कंपेयर करें आप x डॉट वाई प्लस जी के साथ तो आप देखेंगे कि दोनों आंसर सेम है। तो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को जो है वो बूलियन अलजेब्रे में प्रूव कर सकते हैं। फिर आपके पास क्या है, ड्यूअलिटी है आपके पास। द ड्यूअलिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन deduced from the postulate of Boolean algebra remains valid if the operator and identity elements are interchangeable. In the dual of an algebraic equation is required, we interchange the R and operator and replace 1 by 0 and 0 by 1. For example, उसी तरह से हमारे पास x और y हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो अगर आपने x डॉट y कैलकुलेट करना है तो दोनों को आपस में आप जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 0 0 0 1 आ जाएगा। और अगर दोनों को आपने प्लस करना है तो आपके पास आंसर है जो है वो 0 1 1 1 आ जाएगा। तो ये जो है आपके पास ड्यूटी जो है वो प्रिंसिपल कहलाता है। फिर आपको हमारे पास थ्योरम्स हैं जी कुछ यूनिटी थ्योरम के जो है वो बेसिक है आपके पास। ये पोस्टुलेट 2 है, फिर पोस्टुलेट 5 है, फिर थ्योरम 1 है, फिर थ्योरम 2 है। ठीक है, इसके आगे जो है लिखा हुआ है x प्लस 0 इज इक्वल टू x मीन्स x में अगर 0 x कोई भी एलिमेंट हो सकता है आपके पास 1 2 3 4 0 भी हो सकता है आपके पास। तो आंसर जो है वो हमेशा जब भी x में कोई भी 0 जब भी ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास हमेशा x ही है। इसी तरह से x डॉट 1 है आपके पास, x में कोई भी वैल्यू हो 0 हो 1 हो 2 हो, जब उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आएगा जो x में होगा। फिर हमारे पास पोस्टुलेट 5 है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो पोस्टुलेट है आपके मोस्ट लेफ्ट साइड पे P2 P5 T1 T2 लिखे हुए हैं, ये यहाँ से आएंगे। ये जो हमने पहले ये जो पोस्टुलेट पढ़े थे यहाँ से आएंगे 4 5 और ये सारे कुछ बुक को देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। यानी कि उन्हीं को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ बेसिकली। फिर हमारे पास T1 मीन थ्योरम है। ठीक है, और थ्योरम आपको क्या कहती है जी, x प्लस इससे पहले पोस्टुलेट 5 को कर लेते हैं। x प्लस x बार जो है, यानी कि अगर x 0 है तो x बार हमारे पास क्या होगा 1 होगा। तो जब भी आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा आंसर आपके पास 1 आएगा। इसी तरह से जब 0 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि अगर x जो है वो 1 है तो x बार जो है वो 0 होगा, और अगर x 1 है तो x जो है वो 0 है तो x बार 1 होगा। इसी तरह से ये हमेशा एक दूसरे को उल्टे होते हैं। तो जब भी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 होगा, मगर जब भी आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 होगा। थ्योरम अभी हमने देखा था जी x प्लस वाई इक्वल हमेशा x के इक्वल आएगा। इसी तरह से x मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स ही आएगा आपके पास। और फिर आपके पास सेकंड थ्योरम था जी x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स है, और x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 0 आएगा। फिर थ्योरम 3 है हमारे पास, तो इन्वोल्यूशन कहते हैं जी इसको। ये क्या है जी, अगर आपके पास एक चीज़ का कंप्लीमेंट लिया हुआ है आपने और दोबारा उसका कंप्लीमेंट लेंगे तो जो पहली चीज़ थी वही वापस आ जाएगा आपके पास। यानी कि x अगर आपके पास 0 है तो x का कंप्लीमेंट लेंगे तो आपके पास वो आंसर 1 आ जाएगा। अगर 1 का दोबारा कंप्लीमेंट लेंगे तो वापस वही वैल्यू आ जाएगी जो x की पहली थी, यानी कि 0 आंसर आ जाएगा आपके पास।
फिर पोस्टुलेट 3 जो है ये हमें कहता है जी कि अगर आपके पास दो वैल्यू हैं x प्लस वाई, ठीक है, तो x में 0 हो सकता है, y में 1 हो सकता है, या x में 1 हो सकता है, y में 0 हो सकता है, या दोनों एक टाइम पे 0 हो सकते हैं, या दोनों एक टाइम पे 1 होंगे। तो इनका अगर आप ऑर्डर चेंज भी कर दें तो एडिशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि 2 + 3 करें या 3 + 2 करें तो आंसर हमेशा सेम आता है। वही चीज़ ध्यान रखें। यही चीज़ सेम अप्लाई होगी आपके पास मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। अगर आप 2 × 3 करें या 3 × 2 करें तो आंसर हमेशा आपके पास सेम आता है। तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि x × y करें आप या y × x करें तो आंसर हमेशा सेम होगा आपके पास। फिर हमारे पास जो है वो एसोसिएटिव लॉ है, थ्योरम 4। ये क्या कहता है जी, x + y + z है और x + y + z है। मतलब ये है कि तीन एलिमेंट्स को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो तीनों एलिमेंट्स का अगर आप ऑर्डर चेंज भी कर दें तो रिजल्ट हमेशा आपके पास सेम रहेगा। इसी तरह से अगर तीन एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप उनका ऑर्डर चेंज भी कर दें तभी आपके पास आंसर जो है वो सेम रहेगा, यानी कि x डॉट × y डॉट z है। अगर आप इनका ऑर्डर चेंज कर दें, x और y को पहले मल्टीप्लाई करें और बाद में z में उसके साथ मल्टीप्लाई करें तभी आंसर आपके पास सेम ही होगा। फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, क्या कि चीज़ों को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ। ये पोस्टुलेट 4 में अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखा हुआ था। तो x × y + z अगर आप करते हैं तो इसका मतलब है कि x y के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और z के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं x × y और x × z, और फिर आप इन दोनों को आपस में ऐड कर लें, x × y + x × z। और यही चीज़ जो है वो दूसरी तरह से भी आप कर सकते हैं कि आपके पास लिखा हुआ है x + y × z, तो आप इनको अलग-अलग कर सकते हैं, x + y को अलग कर लें और x + z को अलग आप कर लें, ठीक है। तो ये भी इस तरह से भी आप कर सकते हैं। फिर हमारे पास डी मॉर्गन थ्योरम है जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है वैसे। डी मॉर्गन थ्योरम हमें क्या कहती है जी, x + y का अगर आपने कम्प्लीमेंट लिया हो तो इसको आप लिख सकते हैं x का कम्प्लीमेंट डॉट y का कम्प्लीमेंट। अगर दो चीज़ें आपस में ऐड हो रही हैं और आप उनका कम्प्लीमेंट लें तो इसका मतलब है दोनों चीज़ों का अलग-अलग कम्प्लीमेंट लेके आप उनको मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर सेम होगा। ये चीज़ सेम अप्लाई होगी उल्टे तरीके से भी, यानी कि x और y अगर दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और फिर आप उनका जो है वो सर हमारी 5 बजे क्लास है सर। अच्छा, इसको खत्म कर रहे हैं हम इस स्लाइड को। तो x × y का अगर आप कम्प्लीमेंट लेते हैं तो इसको आप अलग-अलग लिख सकते हैं, यानी कि x का अलग कम्प्लीमेंट लेके और y का अलग कम्प्लीमेंट लेके इनको ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास सेम रहेगा। फिर आपके पास लास्ट पे क्या है जी, T6 आपके पास थ्योरम 6 है। x + x × y है तो आंसर आपके पास हमेशा x आएगा, ठीक है। इसी तरह से x डॉट × x + y है तो आंसर आपके पास x आएगा। ये बेसिकली थ्योरम 1 के साथ लिंक्ड है ये चीज़। अच्छा, ये जितनी भी आपके पास हैं x प्लस और ये P2 से लेके T6 तक, ये पूरे का पूरा जो टेबल है, इसको अगर आपने प्रूव करना है तो आप इसका ट्रूथ टेबल बना के ही करेंगे, जैसे ऊपर हमने ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को किया था ये वाला, ठीक है ना। सेम इसी तरह से टेबल्स बना के तो आप इनको प्रूव कर सकते हैं। चलें जी, नेक्स्ट टाइम फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में देखें, मिलते हैं आपसे। तो CR, अगर आप CR का नंबर है हमें क्लास में मुझे लिखवा दें। आप में से किसी के पास CR का नंबर है तो मैसेज कर दें, किसी ग्रुप में मैसेज MS टीम पे मैसेज कर दें।